नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, जेएनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। In Chinese, ni hao. In Japanese, konnichiwa, konnichiwa. And in French, bonsoir. Pradeep ji. Abang Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Isn't that lovely? Absolutely lovely. So, a budget which is being praised by a lot of people, and of course, as far as the opposition is concerned, they say that, listen, this is a very election-oriented budget. You're only concerned with Bihar. You're not concerned with anything else. Punjab comes back and says, hey, listen, what about the Punjab farmers? वो पंजाब के जो फार्मर हैं वो बेचारे अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम द मिडिल क्लास पॉसिबली गेट्स इट्स ड्यू। पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्यम वर्गीय लोगों को के ऊपर शायद ध्यान दिया गया है। लग ऐसा है प्रदीप जी। Exactly, sir. I mean, this is the first time the middle class is really feeling that somebody's thought about it. 12 lakhs tak there's no tax. I mean, nothing. You can what claim they a bit. expect, what the middle class can expect, yes. and the salaried class. Basically, salaried class will be extremely happy what has gone. But जिस प्रकार से आप देखोगे बजट में, probably except the opposition crying foul, helped every sector, every section of the society. It's a very positive budget. और लक्ष्मी जी का जिसने आशीर्वाद लेकर मोदी साहब ने जो शुरुआत किया था कि money will stay in the pockets of the poor, the needy, the middle class, इनके पास पैसे रहेगा. Money will also be saved, money will also be spent, so the economy is going to move in the right direction. I hope that happens. विकसित भारत के सपनों के साथ मिला हुआ एक इकोनॉमी है. This is going to be a push to the movement towards the विकसित भारत. माशाल्लाह, क्या बात है. Now at the moment with us, we have a very distinguished panel indeed. We have Jayant Jigyasu Sahab from the RJD with us. Jigyasu Sahab, नमस्कार. नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? आज जरा खुश नहीं लग रहे हैं आप, क्या बात है? थोड़ा डाउन लग रहे हैं। नहीं जो नॉर्मल एनर्जी होती है आपकी वो नहीं है। निजाम साहब कैसे हैं सर? निजाम साहब तो बिल्कुल ठीक हो सर। निजाम साहब तो ऐसे लगता है रामगोपाल वर्मा की पिक्चर के हीरो लग रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो लाइटिंग है माशाल्लाह। और आवर ओल्ड फ्रेंड विनायक अंबेकर साहब, एट द मोमेंट ही सीम्स टू बी ट्रैवलिंग. I think he's talking to us from a car. Yes. Vinayak Ambekar Sahab, Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. So Vinayak Ambekar Sahab, you must be very happy. You must be a very happy man with the budget today. This is your subject. तो इसलिए मैं आपसे शुरुआत करता हूँ सर। 12 लाख तक तकरीबन जीरो टैक्स, अगर आप अच्छी तरीके से रिटर्न वगैरह मतलब if you can apply for refund etc. If you have a good chartered accountant, so you must be very happy. Vinayak Ambekar Sahab, your first take. Yes sir. बोलिए सर. Yes sir. Not only 12 लाख सैलरी पर्सन के लिए 12,75,000 रुपया जी, सैलरी पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जी, and 1 lakh crore rupees are going to be in the pocket of Indian middle class, which will be मतलब जो देश के अंतर्गत की जो डिमांड है, जिसको डोमेस्टिक डिमांड बोलते हैं, उसको बढ़ावा देगी और वो पैसा इकोनॉमी में आएगा और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने से इकोनॉमी के व्हील्स जो अभी थोड़े स्लो हुए हैं वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगेंगे. इसलिए ये हिस्टोरिक बजट है, ये मेरा कहना है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन मोदी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है. So would you compare this budget with the 1992 budget of Dr. Manmohan Singh? Would you compare it to that? Because a lot of people are comparing it to that. No need to compare like that, but basically that was a historic decision, no doubt. Yes. ये भी बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है कि एकदम 5 लाख रुपए का छूट बढ़ाना ये किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक सोचा नहीं था, ना भी इंडियन मिडिल क्लास ने भी सोचा नहीं था. तो ये हमारे शासन ने किया है, और ये एक जो थोड़ी सी मंदी आ गई थी इकोनॉमी में, उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये सब किया गया है, और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, देश के लिए भी है और मिडिल क्लास के लिए भी है इंडिया के. Now, before I go to Jigyasu, one second. Before I go to Jigyasu Sahab, I want your take on this, sir. Please, Vinayak Ambekar Sahab, do you think this budget will also create jobs? Because that is the major area of concern right now. I still can't. ठीक है, there may be a trickle down effect and so on and so forth. But do you think this budget will give a push to job creation, sir?
डेफिनेटली इट विल गिव, बिकॉज जब इकोनॉमी में कोई हलचल होती है तो उसका नेचुरल इफेक्ट जॉब क्रिएशन में होता ही है, उसमें कोई नो डाउट अबाउट इट। तो ये होगा, जरूर होगा। यू नो अंबेडकर साहब, यहाँ मोदी साहब का नारा था विकास भी और विरासत भी। विकास भी करेंगे और विरासत को भी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि टूरिज्म हब्स आर गोइंग टू बी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। टूरिज्म हब को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो पिछले जितने भी विरासत भी जो संवारा है उन्होंने, चाहे वो राम मंदिर हो, महाकुंभ हो, काशी हो, अयोध्या हो, तो एक टूरिज्म हब को उन्होंने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में शामिल किया है। इज गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट मूव अंबेडकर साहब? यस, इट इज अ वेरी ग्रेट मूव, इट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग मूव। इसके एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी जनरेट होगी इसके वजह से, और ये देश के लिए जो आज की जरूरत है उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। Right. So let's go across to जिज्ञासु साहब। जिज्ञासु साहब, your take on the budget। आपका बजट के ऊपर टेक। ये कहा जा रहा है कि बिहार सेंट्रिक बजट है सर। पंजाब से क्रिटिसिज्म आया है कि आपको सिर्फ बिहार दिखता है, आपको हम लोग नहीं दिख रहे। जिज्ञासु साहब बोलिए प्लीज। पंजाब के साथियों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो गति तोड़ा सो गति मोड़ा। आपसे ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं है। हम तो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस बजट से जी। और बिहार नहीं, ये देश का बजट है तो हम देश के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। प्लीज बोलिए। ये जो कहा जा रहा है कि 12 लाख के स्लैब पर कोई इनकम टैक्स नहीं। अरे भाई, जिस समय 7 लाख का भी स्लैब था तो आपको मालूम ही होगा कि उस समय 2013-23-24 का जो असेसमेंट ईयर है उसमें 2,82,00,000 लोगों ने इनकम टैक्स भरा है और उसमें से 2.5 करोड़ लोगों ने 1.5 लाख से कम का इनकम टैक्स भरा है। और 142 करोड़ के देश में जब 1 करोड़ से भी कम लोग जो उल्लेखनीय अमाउंट में टैक्स भर रहे हैं तो वहाँ पर मिडिल क्लास बचा कहाँ है जिसको आप राहत दे रहे हैं? मिडिल क्लास जैसा जो एक वर्ग था उसकी तो कमर तोड़ के आपने रख दी है। तो अब वो टैक्स क्या देगा बेचारा? तो इसलिए पूरी तरह से छलावा है और पूंजीपति प्रेमी सरकार ने किसानों की कोई सुध नहीं ली है। और पहले भी मैं कहता रहा हूं कि 16 लाख करोड़ रुपए जो राइट ऑफ किए गए हैं, माफ़ किए गए हैं उद्योगपति पूंजीपति जो इनके मित्र हैं उनके, और वहीं पर किसान हमारे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। ये कह रहे हैं कि हम क्रेडिट और फला ढकाना बढ़ा दिए हैं, उसकी सीमा बढ़ा दिए हैं। पुराना कर्ज जो है चुकता करने की स्थिति में हमारे किसान भाई नहीं है, तो किसको ये राहत दे रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बिहार का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग भी सरकार में थे, और ये कोई किसी की आलोचना के लिए नहीं, बस एक आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखना चाहता हूँ कि सिर्फ 5 वर्ष पहला जो यूपीए कार्यकाल है उसमें हम लोगों के 24 एमपी जीत कर गए थे राष्ट्रीय जनता दल के, जिनमें 9 लोगों को मंत्री बनने का अवसर मिला, जिसमें 2 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री। इन सब ने पूरे देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दिया और बिहार को लालू प्रसाद जी ने 1,44,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता मुहैया कराई। आपको ध्यान होगा कि 2008 के आसपास जो है कोसी की जो विभीषिका आई थी, बाढ़ आई थी, उसमें जो तबाही मची थी उसमें भी मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित राशि दी गई। हमारा कहना है कि बिहार और बिहार के नेता लगातार जो उनका प्राप्य है, जो उनका ड्यू है, उसकी मांग रखते रहें और विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। अभी ललन सिंह जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी वो लोकसभा में हैं, और उन्होंने कहा था 1 ही साल पहले कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो सरकार को उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। तो हम बे ऑफ बंगाल भी देख रहे हैं, वहाँ सरकार तो नहीं नजर आ रही है। और सरकार को जब देख रहे हैं तो उनके मुंह से कहीं विशेष राज्य का जो है वो शब्द भी नहीं निकल रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिज्ञासु साहब, जो आपने बात कही है। इसके पहले भी नीतीश कुमार जी ने खुद मंच से ये बोला था कि भाई बिहार को एक स्पेशल दर्जा दे दिया जाएगा, जो स्पेशल स्टेटस होता है किसी भी स्टेट के लिए। उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस, एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, उसके बाद क्या होता है कि क्रेडिट बिकम्स इजी, मनी सप्लाई बिकम्स इजी, स्टेट इज कुशन्ड अगेंस्ट सो मेनी डिजास्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये प्रॉमिस किया गया था, बाय द वे मोदी साहब ने खुद बोला था, मेरा ये कहना है मोदी जी ने खुद बोला था कि स्पेशल स्टेटस टू बिहार विल बी गिवन, ये कहा गया था। तो क्यों नहीं दे रहे सर? क्या वजह क्या हो सकती है? बिकॉज आई टेल यू व्हाई, जस्ट अ पर्सपेक्टिव।
बिहार, जब बिहार और झारखंड में बटा तो बिहार के पास जो पूरी मिनरल वेल्थ थी, जो माइंस थे, सब कुछ वो सब झारखंड में गए। आज बिहार के पास सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है। हाँ, अब आप बोले सर, जिज्ञासु साहब बोलिए। उसमें भी कृषि में भी जो देख लीजिए कि सुखाड़ है, बाढ़ है जी, और जल निकासी का काम ठीक से समय पर कई बार नहीं हो पाता है, तो कई बार उस मिट्टी में एक ही फसल हो पाती है, जी, धान होता नहीं, बस गेहूं से आपको काम चलाना है। दलहन तिलहन जो है वो ऐसे ही सीमित इलाके में हो पाता है। मैं कह रहा हूं कि 2014 में बिहार ने एनडीए को 31 एमपी जिता कर दिया था, 2019 में 39 एमपी और ये 2024 में 30 एमपी। अब बताइए, इतने इतने लोग बैठकर दो ही काम कर रहे हैं, या तो कुछ भी बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, अपनी मांग वहाँ रख नहीं पा रहे हैं, परसुएड कर नहीं पा रहे हैं। हक जो है इस तरह से गिरगिराने से तो नहीं मिलता है, जैसे नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ जाके मोदी जी के सामने कहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। आउटराइटली रिजेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और दूसरा कि हम लोगों के नेता जब केंद्र में मंत्री थे लालू प्रसाद जी, तो बिहार में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय उन्होंने दिलवाए। एक गया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दूसरा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय की शक्ल सूरत जो आप देख रहे हैं, ये भी यूपीए 1 के समय में। चौथा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस ये आपका किशनगंज में खुले, इसके लिए भी वहां से मंजूरी दिलवा दी गई। मानू का खुले, उस पर बात हुई। और केंद्रीय जो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे हम लोगों की पार्टी के लिए, अशरफ फातमी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि बिहार में जो सड़कों का जाल बिछा, वो ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू जो मनरेगा लेकर आए थे पलायन रोकने के लिए, बेरोजगारी को थोड़ा कम करने के लिए, तो हमारे यहाँ से तो लालू जी और रघुवंश बाबू 2 कैबिनेट मंत्री, वहीं कंपनी मामलों के मंत्री प्रेमचंद गुप्ता जी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी जी, तस्लीमुद्दीन साहब उसमें मंत्री थे, कांति सिंह जी कई विभागों में मंत्री रहे, खाद्य भंडारण मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह रहे, मैं कह रहा हूँ रघुनाथ झा जी भारी उद्योग राज्य मंत्री थे। तो हमारे यहाँ से जयप्रकाश नारायण जी जल संसाधन राज्य मंत्री थे। सब ने अपने अपने तरीके से बिहार में काम करने का जिज्ञासु साहब, डॉक्टर जिज्ञासु साहब, 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनाउंस किया है बिहार को। पूरे पार्लियामेंट में ताली बज गई जब अनाउंस हो गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन बिहार। आगे जाके उन्होंने कहा SC ST और महिलाओं को 2 करोड़ लोन इस योजना के तहत, जो MSMEs की योजना की तरफ। क्या आपको नहीं लग रहा कि महिला का अपलिफ्टमेंट होगा, इसमें महिला सशक्तिकरण होगा? SC ST को 2 करोड़ लोन देने से उनके एकदम वर्क वाइज उनके एकदम अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो पिछड़े दबे पिछड़े वो भी। तो क्या ये सब यू डोंट काउंट एज ग्रेट थिंग्स बाय द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर जिज्ञासु? देखिए, ये शब्दों के जादूगर और बाजीगर हैं और उसी की खेती करते हैं, झूठ की। ये कोई पर्सन ऑफ कमिटमेंट और इंटेग्रिटी तो है नहीं। 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2022 के खत्म होते होते किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। अभी रोज जो है ये एक नया लक्ष्य की अवधि बढ़ा के 2047 कह देते हैं, विकसित भारत। अब इनके साथ जो ख्वाब देखने वाले मंत्रिपरिषद के साथी हैं, कई लोग बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, विकसित भारत देखने के ख्वाब के साथ ही वो गुजर गए हैं। बहुत सारे बुजुर्ग का वो आपके हरीश रावत जी जो है वो कल सपना देखे हैं कि भाई उधर से सपने में जो है निर्मला सीतारमन जी दिखाई पड़ रही हैं और विकसित भारत उधर से जंका बज रहा है। भाई तो लगता है कि तब तक हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि भाई हम लोगों के नेता ने भी बिहार में फैक्ट्री खोली और जहाँ पर जो है नदियों से घिरा हुआ इलाका था, पहली बार बिना किसी विदेशी तकनीक की सहायता के एक फैक्ट्री रेलवे का, जिसमें पहिया बनता है और उसमें 2 लाख से अधिक रेल पहियों का निर्माण हो चुका। और भारतीय रेलवे के इतिहास में एक असाधारण बात हुई। और जो कुछ घोषणाएं पिछले साल हुई थी, चुनावी साल तो 2024 भी था, वो घोषणाएं कहाँ तक जमीन पर उतरती हुई दिखाई पड़ रही है बिहार में? सर उसका तो ऑडिट करना पड़ेगा, उसका तो अभी ऑडिट करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि बजटरी एलोकेशन जो होता है, जो प्रावधान होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है, ये दोनों के बीच कोई साम्य होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये इन घोषणाओं का अर्थ है नहीं। दूसरा, मैं समझता हूं कि यह देश बहरहाल रूरल इकोनॉमी का देश है।
छोटे मझोले किस्म के उद्योग धंधों का देश है, अधिकांश लोगों की रोजी रोटी उसी से चलती है। कहते हैं कि देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, तो ये तो अपसंस्कृति वाली संस्कृति है ना, कोई नेशनल कल्चर नहीं है इसमें, कोई नेशनल इमेजिनेशन नहीं है, और कुछ खास पॉकेट्स को ध्यान में रख के उसका बार बार बस नाम लो, बिहार बिहार बिहार। तो कहने का मतलब ये हुआ दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो जी। ये तो कौन सी प्रगति है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता तो है। कहने का मतलब ये हुआ 70% किसान जो है, जी। 70% जो इस देश का किसान है, उसकी मासिक आय आप जान रहे हैं 11,000 से 13,500 के बीच में, और 55% जो किसान है उन पर कर्जा है 91,235 रुपये, यानी लगभग लाख रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है आधे से ज्यादा किसान। आप इसका इस तरह से मदद करेंगे? ये चिढ़ाना है, लोगों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है जिज्ञासु साहब, जो आप बात कर रहे हैं किसानों के बारे में, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी काम किया है। प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तकलीफ यहां पर आती है कि आप जब फार्मर्स के लिए पैकेज अनाउंस करते हैं तो वो पैकेज क्या होता है, जो उनका पुराना कर्जा है वो खत्म करने में इस्तेमाल होता है, नया उनको कहां से मिलेगा? मेरा ये कहना है, which is why farmers suicides are not stopping. Let me go across to निजामुद्दीन रहीम साहब। निजामुद्दीन रहीम साहब, महाराष्ट्र के लिए अभी तक जो एनालिसिस हुआ है, महाराष्ट्र के लिए 683 करोड़ दिए गए हैं टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन द स्टेट, 100 करोड़ दिए गए हैं, 100 करोड़ एग्रो बिजनेस, 1094 करोड़ इकोनॉमिक क्लस्टर्स के लिए, और 186 करोड़ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। 186 करोड़ सर, ये तो मजाक हो गया थोड़ा सा, मतलब 186 करोड़, 186 करोड़ फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। निजाम साहब बताएं प्लीज। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी का ये बजट भी एक उनकी जैसे आदत है ना 20 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ बांटने की जी, ये बजट भी उसी तरह से आया है। आप एक चीज सोचिए ना कि 80 करोड़ लोगों को आज भी वो 5 किलो अनाज पे जिंदा रखने वाले हैं जी। इस बजट से 80 करोड़ लोगों में से कितने को निकाल कर आप उनके भविष्य को संवारने वाले हैं? इस पर सीतारमन जी बोलने को तैयार नहीं है, निर्मला जी इस पर उनको कुछ पता ही नहीं है कि 80 करोड़ लोग आज भी जो है इनके रहमो करम पे पालेंगे, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे कि वो खुद रोजगार कमा कर और अपना भला कर सकें। तो एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज ये कि जिसके लिए हजारों किसान मर गए, आज ये किसानों की बात कर रहे हैं तो बात किस पर कर रहे हैं कि भैया हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, मतलब आप कर्जा लीजिए और कर्जा लेके फिर फांसी लगाइए और मर जाइए। इनके पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि बगैर कर्ज के किसान जो है अपनी खेती कर सके। तो एमएसपी वाला जो मुद्दा था उस पर पूरा निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री और स्वयं दूसरे लोग एक भी शब्द कहीं नहीं कहा है उन्होंने कि हम कुछ करेंगे। उन्होंने किसानों के डेवलपमेंट के लिए ये कहा कि हम आपका क्रेडिट कार्ड बढ़ा देंगे। जो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख का था 5 लाख कर देंगे, 8 लाख कर देंगे। लेकिन वो वापस तो देना पड़ेगा सर, उसको कर्जा लेके ही मरना है, कमा के नहीं मरना। और उसके ऊपर, अरे सर, और उसके ऊपर इंटरेस्ट, जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है जिज्ञासु साहब को इसके बारे में शायद ज्यादा जानकारी हो या आपको ज्यादा जानकारी हो या प्रदीप भाई बता देंगे। अरे वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर सर जो इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 18%। वो उसके अलावा और भी सुनिए ना सर, अभी ये कह रहे हैं कि 12 लाख रुपया हमने छूट दे दिया इनकम टैक्स में। अरे भैया, जब मेरे पास 12 लाख कमा के आएगा तो ही मैं इनकम टैक्स में से बचाऊंगा ना। अभी तो 80 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं इस देश में। अभी तो 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हो, तुम कहां से लाएगा कमा के? So that is being unfair. लाने वाले संसाधन, वो तो अनफेयर हो गई, वो तो बात जरा अनफेयर हो गई। और सुनिए सर, और सुनिए, इनका वादा था ना 11 सालों में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। तो 2 करोड़ का मतलब हो गया 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को नौकरी देना चाहिए था। ये भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में देश के सामने वादा किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं करने वाला हूं, लेकिन उसमें से कितने लोगों को उन वर्षों में आपने नौकरी दिया उसका कहीं आपने जिक्र नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज है कि महिलाओं के डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर महिलाओं से संबंध में कहीं इस तरह की कोई सुरक्षा की उनकी कोई गारंटी या किस तरह चीजें नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी घटना इस देश में पिछले 2-3 वर्षों में हो रही है वो डिजिटल फ्रॉड की हो रही है। उस पर सरकार की कोई तैयारी नहीं है। हजारों करोड़ रुपया लूट कर गरीबों का धोखे से लेकर जा रहे हैं, नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज सुनिए सर, जिन सेक्टरों में जिन सेक्टरों में ये बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं
उन सारे सेक्टर का कहीं ना कहीं से डायरेक्ट अडानी से संबंध है। यानी इनके बजट का 70% पैसा सीधा सीधा अडानी को जाएगा। क्या बात है सर? देखिए, मुंबई में एनालिसिस कर लीजिए। मैं आप इकोनॉमिस्ट महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिला निजामुद्दीन जी वहीं पर मैं बोलता हूं, महिला सशक्तिकरण के हिसाब से उन्होंने लखपति दीदी का जो अनाउंसमेंट किया, जवाब देता हूं। लखपति दीदी का अनाउंसमेंट जब किया तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि कितने लाख, 1 लाख के ऊपर लखपति दीदी ऑलरेडी। सर आप पहले सुनेंगे तो। हाँ, ड्रोन दीदी, ये 2 मिनट सुनिए ना। ड्रोन दीदी, इसके बाद बोलिए। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी अभी 2 करोड़ महिला SC ST को वो लोन दे रहे हैं MSME योजना की तरह, उनको बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण। तो क्या ये एक्सपेंडिचर सरकार कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है? देश की आबादी 140 करोड़ हो, उस 140 करोड़ में 1 करोड़ महिलाओं को आप सोने से लाद दीजिए ना। जब कर्ज लेके घी पीना है आपको, आपके पास डेवलपमेंट का कोई पैसा रखा है क्या? या इन्होंने जमा पूंजी जमा कर रखी है, उसमें से हम खर्चा करेंगे? आप डकैती करने वाली सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि 140 करोड़ की देश में 100 करोड़ लोगों को भी देने की बात करो तो समझ में आता है। 1 करोड़ लोगों को आप नौकरी देंगे, 1 करोड़ लोगों को महिलाओं के लिए आप प्लान ला रहे हैं, बाकी कहां जाएंगे? गटर में साहब। वो आगे चले 3 करोड़ होने वाले, 3 करोड़ होगा। और जो 3 करोड़ भी आप करेंगे तो भी ये देश 140 करोड़ है, 153 करोड़। बाकी ड्रोन दीदी है, ड्रोन दीदी के माध्यम से और सशक्तिकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अलग अलग विभाग में वो 1 करोड़ 2 करोड़ विभाग में कुछ नहीं जा रहा है। 10 साल से देख रहे, 10 साल में 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, 2200 को नहीं दे पाए आप। Right, let's go to इकोनॉमिक, निजामुद्दीन जी, इकोनॉमिक में कितना फर्क है नामबिहार जी? स्लोगन, मोदी जी का स्लोगन है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रधानमंत्री जी बहुत शानदार स्लोगन देते हैं। स्लोगन, इससे बढ़िया स्लोगन इस देश में पैदा ही नहीं हुआ कोई देने वाला। 74 एयरपोर्ट से 150 एयरपोर्ट बना दिया हूं। 74 एयरपोर्ट से 150, मेट्रो सिटीज 5 में था, 21 सिटीज में हो गए। 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल मेट्रो नेटवर्क, 1000 किलोमीटर ऑपरेशनल। तो ये सब क्या तरक्की की राह पर नहीं है? पूछ रहा हूं, आदमी आज भी गरीब आदमी रेलवे में यात्रा करता है, उसका किराया 300 गुना आपने बढ़ा दिया है। 300 गुना। जो टिकट आप प्रयाग नहीं जा सकते इस वक्त, आप 25,000 के हवाई जहाज है, 7,000 का रेलवे का टिकट है मुंबई से इस वक्त। आप जाके दिखाओ, आप बहुत अच्छे, आपकी पहचान है सरकार में। आप 5 आदमी परिवार के लेके जाके आ सकते हो क्या? पूरा देश त्राई कर रहा है, डकैती करने और उसका पैसा लूटने का। साहब वापस आते हैं आपके पास, इसके ऊपर जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले विनायक अंबेकर साहब, विनायक अंबेकर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप इसके ऊपर जरा थोड़ा सा अगर विस्तार से बताएं तो अच्छा रहेगा। माई ओन व्यू इज, दिस इज माई व्यू, इफ 81 करोड़ पीपल, 81 करोड़ या 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में अगर अनाज मिल रहा है, दैट डज नॉट मीन दे आर पुअर। दैट मीन्स आप उनको पैसा दे रहे हैं सो दैट दे कैन यूटिलाइज देयर सेविंग्स और देयर मनी एल्सवेयर। करेक्ट। नाउ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि जहां तक आपका सवाल है, यानी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जब ये आरोप आप पर लगता है तब आप, मतलब जिसको एक कहते हैं ना, एक बड़ा एग्रेसिव एक्सप्लेनेशन जो ज्यादातर बीजेपी से आता है, वो क्यों नहीं आता सर? Because what does that have to do with poverty? 80 crore people are getting free food. Now what does free food have to do with poverty? I really would love to know. The government is just helping you, that's it. And those who don't want it have the choice of not taking it. करेक्ट। जी, अब आप बोलें सर। अब तो पहले को समझने की ताकत है, क्षमता है, उसको ही समझाया जा सकता है। ऐसे पागल लोग तुम डिबेट में बुलाएंगे तो उनको क्या समझाएंगे? सर ये क्या है? क्योंकि पहले एक बात सुन, नहीं क्या कैसे बात कर रहे हैं वो? पहले तो एक समझ लो, एक विश्व ये यूनो का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्होंने शब्द भी नहीं सुना रहेगा, तो ऐसे कोई गोल्स है, उसमें 2 नंबर का गोल है जीरो हंगर from the arrogance of superiority complex. जीरो हंगर का अभी मेरे को बोलने का बहुत बात किया आपने, पागल जैसी। चुप बैठो। सारे बीजेपी वाले पागल ही हैं ये, क्योंकि ये डकैत और चोरी से आए। अरे कुछ सुनना है तो सुन के ले भाषा लो। नहीं पता है, मर्यादित आदमी है, पढ़े रहीम लिखे, साहब, क्योंकि उन रहीम साहब,
रहीम साहब और ये तो वही जिज्ञासी सब सीख गए। साहब, जिज्ञासु जो साहब, जनरली इनके यहाँ बात करते हैं वो लगभग मैंने हिसाब विनायक से है। अंबेडकर साहब वही से एक भाषा सवाल जो है, पूछा ये है, कंटेंट होके बात let him reply सर please. माननी चाहिए उनको। Sir, please. Number two, I would like you to talk about Ambedkar Sahab. Only 186 crores for irrigation in Maharashtra. Maharashtra, sir, Maharashtra's requirement is 18,600 सर crores. पहले Sir, पहले सवाल का जवाब तो जी सुनिए। बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। हाँ, तो ये जो इन्होंने ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, जी हाँ, यस जीरो उन्होंने हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो जी। दिया है उसमें जीरो हंगर ये 2 नंबर का गोल है। उसको मीट करने के लिए ये जो अनाज दिया जाता है फ्री में कि कोई भी भूखा ना रहे, इसका मतलब है कि आप दुनिया मतलब भारत में 81,000 लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे है, ऐसा जिसको इकोनॉमिक्स का जीरो मालूम है वही सोचेगा। आप अभी मैं एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ, आप कभी आपके मेहमान के घर जाते हैं तो एक मिठाई का बॉक्स लेके जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि आप 100 आपके रिलेटिव के घर में गए और मिठाई का बॉक्स लेके गए तो वो भूखे मर रहे थे करके आप लेके गए। ये जो एक कर्सी है ये गवर्नमेंट की तरफ से, भारत ने ये तय लिया है मोदी सरकार ने कि 2030 तक ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो पूरा करेंगे और उसके तहत ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसका प्रोग्राम चलाया जाता है। अभी आपने महाराष्ट्र को 186 करोड़ मिला ऐसा बात किया है। Sir, आपको- from this is by the way, clarification. This is a preliminary analysis of the budget. We still haven't gone into the fine print. Okay, that will come to only tomorrow. Let me Sir, read out the numbers again. 100 crore for agro businesses, 1,094 crores for economic cluster, and 186 crore for irrigation projects. Plus Sir. boost for 100 districts. जी बोलिए। सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का ट्विटर अकाउंट खोलिए। उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है घंटा भर पहले में, उसमें 12 प्रोजेक्ट का लिस्ट दिया है जिसमें इस बजट में कमिटमेंट किया गया है। इस बजट के जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक स्पेशल पेज रहता है जिसमें हर स्टेट को क्या सेपरेटली हेल्प दिया जाता है उसका लिस्ट है। ये बजट का पीडीएफ फॉर्मेट में आज सब दुनिया के लिए पूरा ओपन है। ये बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो, और उसमें महाराष्ट्र के लिए क्या दिया है वो स्पेशली मेंशन किया है सेपरेटली। हर कोई जो केंद्र सरकार की स्कीम रहती है जिसमें महाराष्ट्र शासन के साथ चलाई जाती है उसमें मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ चलाई जाती है, उसमें सब स्टेट के साथ, जिसमें बिहार भी आता है और महाराष्ट्र भी आता है, सब स्टेट के साथ पार्टनरशिप में 40% किधर सेंटर डालता है, 60% स्टेट डालता है, किधर 60% सेंटर डालता है, किधर 40% स्टेट डालता है, ऐसी सब स्कीमें चलती है जिसका सेपरेटली उल्लेख नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट जब से आई है तभी कोई स्टेट का सेपरेटली उल्लेख नहीं किया जाता है। जो स्कीम एप्लीकेबल है वो पूरे नेशन के लिए है। पहले मैं जब सुन रहा था तो एक बिहार के भाई साहब बोल रहे थे कि बिहार को क्या मिला क्या नहीं मिला। ये गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है जिसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था का विचार किया जाता है, जिसमें सब स्टेट का उसमें सहभाग रहता है और वो उसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सब छपा हुआ है, इन प्रिंट दे हैव गिवन इट। And you must be a very happy man today. Let me point this out. You are from Pune. The Mulla Mutha river has been granted 229.94 crores for its cleanup and dredging, which I think is a great thing because that is actually the heart of Pune. If you come to think of it. And number two, Pradeep ji, you wanted to ask a question, but before that, the Mumbai Metro has received 1,255 crores. The Pune Metro 699 crores. And the MUTP, that is the state transport, that is about 511.48 crores, and so on and so forth. So actually, if you look at it, now I've still not worked out the numbers as to where is this 1,200 crores going to come from, etc., etc. But overall, Maharashtra's got a huge chunk. जी प्रदीप जी। I want to know that मोदी साहब ने emphasize किया कि capital expenditure, economic transformation by the way of investing in capital expenditure. उन्होंने analysis दिया कि UPA के rule में only 1.7% of the GDP was being utilized for capital expenditure, but now it is 3.2% of the GDP is utilized for capital expenditure. That is creating jobs, that is creating equality of life, and that is taking a giant step toward Viksit Bharat. So the Congress is disputing it. How do you see that, Ambedkar साहब? ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का जो चीज़ है वो पूरे दुनिया में मान्य हुआ है कि वो जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी को जनरेट करता है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
कि उसका वो रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। 1 रुपया यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डालें तो उसका कम से कम 5 रुपया का जीडीपी क्रिएट होता है उसकी वजह से। जैसा आप देखें, सीमेंट उद्योग है, वालू उद्योग है, स्टोन उद्योग है, बाद में मजदूर लोगों का मजूरी है, इंजीनियर का तनख्वाह है, बाद में ट्रांसपोर्ट वाले का भाड़ा है, बाद में हार्डवेयर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब चीज़ की खपत बढ़ती है उसके वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। उसका जो सर्कुलर इफेक्ट है वो जो उसकी बात मोदी जी कर रहे थे कि उसके वजह से हमने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका सर्कुलर इफेक्ट होके इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। और ये सब पूरे विश्व में मान्य हुआ प्रिंसिपल है और एक्सपीरियंस भी किया है हमने। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। जिज्ञासु साहब, लेट मी कम बैक टू यू। आपको लेकर के विनायक अंबेकर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के पुणे से हैं, उन्होंने एक दो चीजें कही, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि बिहार को वो नहीं मिला जो बिहार की अपेक्षा थी। फॉर इंस्टेंस, स्पेशल पैकेज फॉर बिहार और स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार। आज तक अभी तक कोई रिप्लाई भी नहीं आया, तो व्हाई इट इज नॉट बीन गिवन? सो व्हाई डू यू थिंक इट इज नॉट बीन गिवन? जिज्ञासु साहब, प्लीज। जिज्ञासु साहब, कैन यू हियर मी? ये तो देखिए, ये तो हमेशा से रहा है ना कि जब आपके अंदर वो पॉलिटिकल एक्यूमेन हो और आपने कुछ इस तरह का ना किया हो कि आपको कोई मैनिपुलेट कर ले, ब्लैकमेल कर ले, तो आप अपनी बात को असर्टिवली कहते हैं और जो आपका हक है उसको आप लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का मुझे नहीं मालूम कि किस मनस्थिति के साथ वो काम कर रहे हैं और किस तरह का फेडरल रिलेशन वो निभा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन दुनिया ये जानती है कि वो अपने निर्णय लेने में अब वो सक्षम नहीं रह गए। कुछ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं या फिर उनकी पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पर प्लांट किए गए कुछ लोग हैं, वो लोग उस दल को हाँक रहे हैं और सरकार को भी हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसको रिवाइज नहीं किया जा सके। और शुरू में ही ये बात कही गई है कि हम जो है चारों तरफ से, कभी बाढ़ कभी सुखाड़ से पीड़ित स्टेट हैं और हमारे पास से सब कुछ चला गया है झारखंड वाले हिस्से में। तो हमारे उस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। और अगर कुछ और स्टेट को इसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया को अगर हम शामिल कर दें या उसको रिवाइज कर दें, लाभ मिलता है, तो इससे क्या दिक्कत है? इससे तो भारत का सर्वांगीण विकास होगा। कोई सूबा अगर यूं ही रह जाए पिछड़ा हुआ, तो ये तो भारत की तरक्की उस रफ्तार से नहीं हो सकेगी। और हम लोग तो कुछ अलग से मांग नहीं रहे भाई। हमारे यहाँ जितने लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, क्या पर्याप्त विश्वविद्यालय हैं? नहीं। और जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज हैं वो तो 7-7 यूनिवर्सिटी खोला लालू प्रसाद जी ने, राबड़ी जी ने। उतना किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं बिहार में खोला है। लेकिन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी देने की बात हुई जब शासन सत्ता में थे, तो वह भी किया। लेकिन ये अपर्याप्त है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये किसानों के हक में ना तो बजट है, ना तो ये विद्यार्थियों के हक में है, ना तो कामगारों मेहनत कशों के हक में है। तो कुल मिला के ये पूंजीपति प्रेमी सरकार है जी। और ये I'd like to ask you a के लिए question, बजट sir. बनाती है। जिज्ञासु साहब, one small question. राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि दिस बजट इज लाइक अ बैंडेड फॉर बुलेट वुंड्स। ऐसा इन्होंने कहा है कि वास्तविकता में अगर आप इतनी सेविंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जीएसटी को आधा कर दीजिए। आप लोगों ने नहीं किया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है कि जो होम लोन्स थे उसके ऊपर भी तो आपको टैक्स रिबेट देनी चाहिए थी, सिर्फ सैलरी पे आपने दे दी। एंड नंबर 3, मेडिसिन को लेकर के और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के वहां पर अभी तक कोई खास बात नहीं की गई है, जबकि डिमांड थी कि भाई उस पर तो जीएसटी हटा दीजिए। जिज्ञासु साहब, नहीं, ये तो जीएसटी का जो ये पूरा का पूरा बखेरा था, ये तो शुरू में ही कहा गया कि ये बहुत वेल थॉट नहीं है और बहुत हड़बड़ी में कुछ न कुछ ये करते हैं। ये अपने आप को समझते हैं कि हम इंदिरा गांधी की तरह कुछ बिग अनाउंसमेंट कर देंगे। अरे भाई, उस समय भी डिवेल्युएशन ऑफ रुपी हो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो, प्रिवी पर्स का खत्म किया जाना हो, सोच समझ के किया गया फैसला था। और 24 घंटे रेडियो में घुसी हुई नहीं रहती थी इंदिरा गांधी, कुछ जन जागृति का काम भी करती थी। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, नार्सिसिस्ट हैं। इनको लगता है कि यही इस देश को समझ रहे हैं और हमेशा के लिए यही आए हैं। तो ये देखिए, ये तो एक बात हुई। जो आवासीय प्रबंधन है लोगों का, उस पर भी कोई बहुत स्पष्ट तरीके से सरकार ने राहत देने का काम नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं जी,
कुछ लोग किराए पर रहते हैं जी शहरों में, कुछ लोग जो गांव में हैं वो बुरी हालत में हैं। तो ये सिर्फ कह देने से कि इतना लाख हम घर बनवा रहे हैं, इतना लाख इतना समय में बन जाएगा, तो इसमें कहीं कोई सच नहीं है। और मुझे तो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले है आर्म्स एंड द मैन, यस उसका एक वाक्य याद आ रहा है और मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि 14 साल से इस आदमी को वैसा ही करते हुए देख रहा हूँ, पिछले मैंने 11 साल से कहने को। यह है कि when you strike that noble attitude and start speaking in that thrilling voice, I admire it, but I find it very difficult to trust a single word you utter. तो ये बोलते रहें लच्छेदार, लेकिन इनके एक भी शब्द पर भरोसा करना नामुमकिन सा लगता है। डॉक्टर जिज्ञासु, आप दोनों कंपेयर झूठे कर रहे लगती थे है ना। आप कंपेयर कर रहे थे यूपीए टर्म जहां लालू जी के बहुत कंट्रीब्यूशन थे, आपके मिनिस्टर्स के बहुत कंट्रीब्यूशन थे, और अभी के आप दोनों को कंपेयर कर रहे थे कि बहुत फायदा हुआ। बट मोदी जी ने आंकड़ा दिया है, बोले कि ये 11 साल में $667 बिलियन एफडीआई के माध्यम से आए, जब यूपीए के वक्त ओनली $305 बिलियन हैड कम। He says there was a policy paralysis when मनमोहन सिंह आपके यूपीए जब चल रहा था, मोदी साहब का कह रहा था पॉलिसी पैरालिसिस, आप डिसीजन ले नहीं रहे थे, उद्योग नहीं हो रहा था, इकोनॉमिक जो थे जीडीपी इट प्लमेटेड डाउन टू नियरली लो फिगर, एंड इट वाज मोदी साहब who has turned and transformed the politics of performance has come now. Dr. Jigyasu sir, the politics of performance has come now compared to the policy of paralysis then. नहीं माने पॉलिसी जो है दोनों टांग पर दौड़ता हुआ भागे मैराथन की तरह, ये तब आप मानेंगे जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री अलग से क्रिएट कर दिया जाएगा। ये तो वाजपेयी जी के समय में हुआ। जब पेंशन खत्म कर दिया जाएगा उसको आप कहेंगे डिसीजन, क्विक डिसीजन। माने इस देश की तासीर को समझे बगैर जब आप कमर तोड़ दें उन छोटे मंझोले किस्म के काम धंधे में लगे व्यवसायियों की, अब देखिए ना, जाकर पता कीजिए उन दुकानदारों की क्या हालत है इनके जीएसटी लगने के बाद से, नोटबंदी के बाद से। ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा ना भाई, ये जो है एकदम लीगलाइज्ड प्लंडर है, ऑर्गेनाइज्ड लूट है, और वो दिख रहा है, उसका साफ साफ असर दिख रहा है। भाई कौन बात का ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ को आप ग्रोथ कहेंगे? जहां बेरोजगारी दर इतिहास में सबसे ज्यादा पहुंच गया हो, बिहार तो उसका एक बड़ा भुक्तभोगी सूबा है। तो ये कौन सी बात है? हम लोग राइट टू हेल्थ की बात कर रहे थे। यूपीए 1 के समय में तो जितने राइट बेस्ड अप्रोच के साथ काम किया गया, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसको आप कह रहे हैं, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, ये सब तो उस समय आया और बहुत बहुत उसका लाभ मिला है। चाहे निम्न मध्य वर्ग के लोग हों, चाहे मध्य वर्ग के लोग हों, या किसी भी ग्रुप में फॉल करते हो, क्लास में फॉल करते हो, किसी को एक्सक्लूड करके कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती थी। यहाँ तो चंद घरानों को मुनाफा पहुंचाओ, फायदा पहुंचाओ, उसके लिए विदेश नीति को भी प्रभावित करो, उसके लिए अब तमाम मामले तो है ना। फ्रांस की सरकार क्या कह रही थी राफेल के मामले में, और बाकी सरकारें क्या कह रही हैं कि भाई ये जो है कोयला के लिए और विद्युत आपूर्ति के लिए और बांग्लादेश के साथ क्या इनका साठगांठ और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर, इनको फॉरेन पॉलिसी समझ में आता है। पर डॉक्टर जिज्ञासु, बड़बोले आदमी, बड़बोलेपन को आप कूटनीति कहेंगे। एक्सप्रेसवे और एक निमंत्रण के लिए आप जान रहे हैं ना, वहां दूतावास है, भारत का एम्बेसडर है, बाकी लोग हैं, हाई कमिश्नर है, किनको वहां शामिल होना था ट्रंप के शपथ ग्रहण में, और चले गए हमारे विदेश मंत्री, है ना। इनको वारंट ऑफ प्रेसिडेंस से कोई लेना देना है? तो भारत की गरिमा के साथ इनको कोई लेना देना है? ये मजे करने के लिए आए हैं और एक पद पर पहुंचना था, मारकाट लूटपाट करके पहुंच गए, ये शौक अपना मिटा रहे हैं। सोनिया जी ऐशो आराम कर रहे हैं। सोनिया जी ने जिस कमेंट किया प्रेसिडेंट मुर्मू पर, आलोचना किया है मोदी साहब ने, बोले कि आप एक दलित महादलित राष्ट्रपति को इस प्रकार से आलोचना करना, इंसल्ट करना ठीक नहीं है। इट शोज द रॉयल फैमिली मेंटालिटी। रॉयल फैमिली मेंटालिटी आपके तरफ से आए डॉक्टर जिज्ञासु सर। हम तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया जब ऐसे बोलती हैं तो वो अपने अनुभव भी साझा करती हैं, और जब सरकार का लिखा हुआ कुछ पढ़ती हैं, मैं तो समझता हूं कि इस रिवायत को ही बंद कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पास पर्याप्त विवेक होता है, वो जो देश के हालात देखती हैं और सरकार से जो उम्मीद करती हैं, सरकार के कामकाज को जिस तरह से मूल्यांकित करती हैं, उसी आधार पर उनका अभिभाषण हो तो शायद बेहतर परिपाटी की शुरुआत होगी, चाहे हमारी सरकार बने या अभी की सरकार हो।
लेकिन राष्ट्रपति महोदया को कौन लोग नहीं बुलाते हैं अलग अलग समारोहों में? ये तो वो बताएं कि वो अपमान कर रहे हैं कि कोई। सोनिया जी ने तो बस इतना कहा कि अंत तक वो राष्ट्रपति जी ऐसा लग रहा था कि थक गई हो, इतना मोनोटोनस ढंग की बातें जो है ढेर पढ़वाया जा रहा था उनसे। इस आलोक में उनकी टिप्पणी थी, ये कोई अपमान? हम लोगों ने तो KR नारायणन साहब को राष्ट्रपति बनाया था, हम लोगों ने PS संगमा साहब आदिवासी समाज के थे, उनको स्पीकर बनाया था। ये कहां से बात आ गई इसमें दलित की और आदिवासी की? रॉयल फैमिली वर्सेस ट्राइबल लीडर, जो अपकमिंग ट्राइबल लीडर। देखिए, हम आप बोलेंगे तो इसमें विवाद हो जाएगा। रॉयल फैमिली के सामने नाक रगड़ने वाले, ब्रितानी हुकूमत के तलवे चाटने वाले और इधर की बात उधर जाके मुखबिरी करके पहुंचा देने वाले लोग, ये रॉयल मेंटालिटी की बात करते हैं। ये डेमोक्रेटिक मिजाज है, ये जमहूरी मिजाज है, ये लोकतांत्रिक मानस है, जिसके चलते हमें लगा कि राष्ट्रपति महोदया को इतना नहीं मैंने ये करना चाहिए कि वो अपने मन की बात नहीं कह सकें, दिल की बात नहीं कह सकें। निजामुद्दीन रहीम साहब, कांग्रेस के निजामुद्दीन रहीम साहब, राहुल गांधी जी ने और अन्य कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि भैया ये मिडिल क्लास के लिए जो 12 लाख रुपए का जो आपने रिपेट दे दिया, ये तो एक छलावा है। असल में ये जो बजट है, ये वास्तविकता में आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं, ये उनके लिए है। आप इस बात से सहमत होंगे? वैसे आपसे असहमत कैसे होंगे? आप ही के नेताओं ने बोला है। बोलिए सर। सर, सिर्फ नेताओं की बोलने की बात नहीं, सारी चीजें सामने दिख रही है ना सर। जब पैसा आएगा तभी टैक्स की बात करेंगे ना। लाने का कुछ है नहीं, नौकरी आपको देना नहीं है, दे नहीं पा रहे हैं आप सिर्फ कर्जा लीजिए, कर्जे से खर्चा करिए। जैसे कर्जा है 11 साल में कितना कर्जा उन्होंने आप बढ़ाया, और 50 साल में इन लोगों ने कितना कर्जा लिया था इनके पुराने साथ। तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ कर्ज लेकर लोगों को डेवलपमेंट दिखाएंगे। अभी कह रहे थे कि रोड सड़क बहुत अच्छा बना रहे हैं सर, वो पब्लिक पार्टनरशिप में सारी सड़कें बन रही हैं। सरकार किसी भी सड़क को फ्री नहीं कर रही है। आप मुंबई में रह के समुद्री क्षेत्र में जाएंगे, 200 रुपया आपको देना है, 500 रुपया देना। मतलब ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि रोड टैक्स भरने के बाद गाड़ी आपको लेनी है, उसके बाद इंश्योरेंस भी देनी है, RTO भी देना है, गलत जगह पार्क किया उसका भी पैसा देना है। यानी आपको कहीं से छूट नहीं है। आपको लूट कर ये बताना है कि मैंने बहुत अच्छा किया। आप अभी जिन डेवलपमेंट रोड उन डेवलपमेंट में जनता को क्या फायदा है? या आप वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे या 3 एयरपोर्ट आप बना रहे हैं, तो गरीब कैसे जाएगा? उसके लिए क्या साधन है? वो तो 5 किलो अनाज लेके जीने वाला है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? यानी जिस देश में आप निकलता हूँ, ये फालतू का बजट चल रहा है। 120 करोड़ लोग आज भी गरीब हो, उस देश में आप जो है वंदे भारत चलाकर सिर्फ अमीरों की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहने का मतलब ये हुआ आपके मुताबिक निजामुद्दीन रहीम साहब के लिए क्या कर रहे हैं? Nizamuddin Rain, so I think Mr. Vinayak Ambedkar has left us. I think that's very arrogant on the part of Mr. Vinayak Ambedkar. Very frankly speaking, I find this attitude to be somewhat strange. मुझे बड़ा अजीब लगता है कि विनायक अंबेडकर साहब जो हैं अपने आप को माशाल्लाह बड़े फने खान समझते हैं। शायद वो हम लोगों के बीच में बैठना नहीं चाहते। All the best to him. Now this is for our guest relations. This is the last time you will invite Mr. Vinayak Ambedkar. I don't want him on my channel. Let me tell you very frankly, वो जा करके उस चैनल में बात करें जहां पर उनकी एरोगेंस को लोग एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज बीइंग ब्लडी एरोगेंट। लेकिन निजाम साहब, आप ये बताएं, हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। जैसे प्रदीप भाई ने अभी अभी बताया, इतने एयरपोर्ट बने, बुलेट ट्रेन बन रही है, मेट्रो के लिए इतना पैसा आ रहा है, न जाने ये सब आ रहा है। तो ये आपके मुताबिक कोई अचीवमेंट नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अचीवमेंट नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये अचीवमेंट है तो इस देश में 130 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। अगर आज यूपी वाले को मुंबई आना है या बिहार से हमारे किसी भाई को मुंबई आना है, तो उसके पास इतना तो साधन करिए कि वो ट्रेन से आ सके जी। अगर आप बिहार से जो है हवाई जहाज चला के 25,000 में उसको मुंबई पहुंचा रहे हैं, तो ये तो इस गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं ना। यानी जो लेकिन मोदी जी ने तो कहा था, जिज्ञासु साहब, मोदी जी ने तो कहा था मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, ये कहा था उन्होंने सर। तो अभी तो टिकट जो है वो इट इज आउट ऑफ रेंज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। जो हवाई जहाज की टिकटें जो है सर, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव राइट नाउ। जिज्ञासु साहब बहुत असंवेदनशील व्यक्ति हैं, और भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गए हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पर
लोग शहीद हो रहे थे और ये फोटोग्राफी करा रहे थे अपनी 2019 के चुनाव के ठीक पहले की बात है। तो इनका इसी तरह का पूरा मनोमिजाज है। तो ये कभी भी भारत की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पूंजीपतियों का एक काम होता है कि आपको वो सारे ऐशो आराम के दरवाजे दिखा दिए जाएं, जिसके बाद उसको छोड़ने की नौबत ही ना आए, और उसको बनाए रखने के लिए उस जीवन शैली को आप तमाम तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। ये आरएसएस में जब शुरू में आए थे तब से लेकर अब तक इनके तमाम पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह आप देख लीजिए, तो जनता के सुख सुविधा से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, अनरियलिस्टिक बातें करते रहते हैं। बताइए, डिफरेंटली एबल्ड को दिव्यांग कह दिया, अभी पता नहीं विचित्र हवाबाजी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर अब क्या कहा जाए। जिज्ञासु साहब, फिर डॉक्टर कभी आऊंगा एक डिबेट में। डॉक्टर जी, एक चीज आपको पूछना चाहिए। One last question, sir, before you go. इको टूरिज्म, नाउ देयर आर सम थिंग्स दैट डॉक्टर जिज्ञासु साहब जो हम लोग दिख रहे, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक टूरिज्म, प्रसाद योजना, अयोध्या, काशी, केदारनाथ, महाकाल कॉरिडोर से लाखों करोड़ों भीड़ जिस प्रकार से इकट्ठा हुआ, तो थिंग्स हैव चेंज। पहले ताजमहल देखने लोग आते थे, आज राम मंदिर देखने जा रहे हैं, केदारनाथ, महाकाल, काशी, अयोध्या। आपको नहीं लग रहा कि करोड़ों लोग का संगम जिस प्रकार से हो रहा है, दिख रहा है कि देयर इज सम चेंज। टूरिज्म इज बिकम अ वेरी फैंटास्टिक डेस्टिनेशन एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म खास करके इंडिया इज अर्निंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। जिज्ञासी साहब, तो क्या ये चेंजेस दिख नहीं रहा है? इस देश को जिन लोगों ने चलाया है वो शुरू से चाहे वो पर्यटन के स्थल हों, सांस्कृतिक महत्व के स्थल हों, पुरातत्व के महत्व के तमाम स्थल हों, लोग देखने जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, उसको महसूस करने जाते रहें। लेकिन ऐसी कुव्यवस्था और ऐसा कुप्रबंधन पहले नहीं होता था। आप जो है लोगों को भीड़ समझते हैं और भेड़िया धसान देखने को मिलता है, और उसके बाद उनको कभी ताकीद नहीं करते आप। और फिर उसके बाद यह भी आप देखें कि जिन लोगों की जान चली जाती है उनके बारे में कितनी खराब टिप्पणी होती है कि मोक्ष मिल गया है, तो वगैरह। सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? लेकिन जिज्ञासु साहब, यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है, मुझे मालूम है आपको जाना है। सर, अभी तक ये कहा जा रहा है कि कितने 26 करोड़ 30 करोड़ में से कितने लोग आ चुके हैं, और उसी दिन जिज्ञासु साहब, जस्ट वन स्मॉल थिंग, छोटा सा कमेंट आपसे, और उसी दिन जिस दिन यह हादसा हुआ 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब जो मशीन इनके पास है, जो इनके पास इक्विपमेंट है, जिससे ये 12 करोड़ लोग गिन सकते हैं, मरने वालों की संख्या नहीं गिन सकते। ये क्या है? ये कायर लोग हैं, ये समझाएं। कायर लोग हैं। They took 17 hours to announce that 30 people have died. आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है ठीक उसके उलट तस्वीर और सच्चाई है, और बहुत दुखद सच्चाई है। बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है जी। और सरकार जो आंकड़े देती है कमो बेस उससे 10 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ तो 200 गुना ज़्यादा कैजुअलिटी होने की आशंका जताई जा रही है। और जो कमिश्नर हैं वो इतने इंसेंसिटिव थे, उनके पूरे बयान आप देख लीजिए, बहुत विद्रूप किस्म के हैं। वो कह रहे हैं वही कमिश्नर है ना, भगदड़ की आशंका हो सकती है, संभावना कैसे हो सकती है? और ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, बहुत इनह्यूमन, बहुत insensitive। Isn't this the same commissioner who was pulled up by the comptroller and auditor general? कोई 6 साल पहले अर्थकुंभ के दौरान इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट गई थी, जहां तक मैं जानता हूं। मैं कंफर्म नहीं हूं। तो फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच जिज्ञासु साहब, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जिज्ञासु, सो नाइस ऑफ यू। तो निजाम साहब, आप सफल हो गए, आपने विनायक अंबेडकर साहब को भगा दिया। ये क्या किया सर आपने? जब भी आप आते हैं वो भाग जाते हैं। ये प्रदीप जी ने उनको भगाया। क्या है, प्रदीप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, इसलिए उनको पता है कि भाई मेरे लिए यहाँ है। लेकिन मैं अभी जो घटना प्रदीप जी कह रहे थे, ये धर्म स्थलों का इशू, अभी आप मुझे बताइए सर कि भारत में आदमी आएगा, अगर वो राम मंदिर नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? अगर उन्होंने राम मंदिर भव्य बनाया तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, पूरा देश स्वागत करता है। लेकिन जिस दिन से राम मंदिर बना और जब बन रहा था, जब बन के उसका उद्घाटन हुआ, कोई गरीब आदमी वहां घुस पाया क्या? क्या उन्होंने अमीरी व्यवस्था का खात्मा किया क्या कि भाई यहाँ अमीर लोगों के लिए लाइन नहीं लगेगी, मुकेश अंबानी भी उसी लाइन में जाएंगे जिसमें नाम्बियार जी जाएंगे? लेकिन नाम्बियार जी तो वहां फटक भी नहीं सकते।
अगर पहचान निकाल के पास लेके जाएंगे तो पुलिस वाला दिखाएगा, नहीं तो बोलेगा आप पीछे लाइन में जाओ, 4 किलोमीटर बाद आना। तो धर्म की व्यवस्था को भी उन्होंने व्यापारीकरण कर दिया। और दूसरी चीज जो अभी इन्होंने मेला की बात की कुंभ में, आपने कल आजकल में एक घटना आपने चैनल पर देखा होगा सर, कि कल पूरे इलाहाबाद में, मैं प्रयाग अब नहीं इसलिए कह रहा हूं कि वहां के लोगों ने इलाहाबाद और प्रयाग को 2 भागों में बांट दिया। यानी हिंदुज्म का जो इलाका उन्होंने, यानी योगी जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने उसको प्रयाग कर दिया, और जो नेहरू गांधी के जमाने का शहर था उसे इलाहाबाद कर दिया। तो कल एक घटना देखने को मिली कि जब प्रयाग की ये व्यवस्था शुरू हो रही थी, माननीय योगी जी ने यह कहा कि मुसलमानों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने किसी मुसलमान को दुकान नहीं लगाने दिया, उनके किसी गाड़ी पे ड्राइवर नहीं आने दिया, जितना कुछ कर सके किया। लेकिन जब ये एक घटना दुर्दैव हुई, नहीं होना चाहिए था, जब ये घटना हुई तो बचाव में पूरे शहर के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों को खोला, अपनी दरगाहों को खोला, अपने मदरसों को खोला, अपने घरों से बिस्तर, चादर, नाश्ता, खाना, जितने हमारे आगंतुक, क्योंकि सब भारत के ही भाई हैं जो वहां आए थे, उनको पहुंचाया। इससे इनको ये सबक लेना चाहिए कि इस तरह की झूठ। दूसरे, आज मैं दोनों धर्म संसद के जो इनके बड़े तीनों आचार्य हैं और महामंडलेश्वर हैं, उनकी बात मैंने सुना। उन्होंने तो आज योगी से इतना कह दिया कि आपने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कि जिस दिन इतने लोग मरे उस दिन हमको उपवास रखना चाहिए था, क्योंकि ये सनातन धर्म में नहीं है। उन्होंने झूठ बोलकर कि कोई घटना नहीं हुई है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, ये जो योगी जी ने 2 ट्वीट किए, वो दोनों ट्वीट के अलावा वहां कोई संसाधन नहीं था कि कोई चीज किसी को बता पाता। तो हजारों संतों ने मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं कर पाए, और उससे पहले जो संक्रांति का स्नान था उसको भी योगी ने बिगाड़ दिया। तो यानी धर्म से खिलवाड़ कौन कर रहा है? लेकिन यहाँ पर एक और चीज आ रही है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं आपके पास खबर है कि नहीं है। मैं काश कोई भारतीय जनता पार्टी वाला होता हम यहाँ पर, तो हमसे पूछ लेते। क्या था कि 2013 में जब धर्म संसद हुई थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक धर्म संसद हुई थी 2013 में। वहां पर सभी साधु, महात्मा, महंत, मठाधीश, मंडलाधीश, सब लोगों ने मोदी जी का नाम आगे दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री हो तो वो नरेंद्र मोदी होना चाहिए। इस बार प्लानिंग ये थी कि योगी आदित्यनाथ जी का इस प्रकार नाम आगे किया जाएगा, और इस घटना की वजह से वो नहीं हो पाया। और साथ में जो आपने बात कही, सुनिए ना, जो आपने बात कही अभी कि इतनी देर लग गई रिवील करने में, वो भी आखिर में जो खबर बाहर आई है वो सेंटर से आई है सर। ये कहा जा रहा है कि कहीं ये मोदी वर्सेस योगी तो नहीं है। पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ये तो बिल्कुल सबको दिखने लगा है कि योगी जी जो है अगला भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपने सारे तर्कस के तीर निकाले। लेकिन देखिए, जब ईश्वर किसी को मदद नहीं करना चाहता तो वो सारे रास्ते हो गए। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब ये अपने आप घटना थी, और इस घटना से बहुत सारे उनके लोगों ने मुलायम सिंह को दोषी दिखाने की कोशिश की कि जब अखिलेश की सरकार थी तो भी हुआ था। अरे जिसके सरकार में जो हुआ था तो क्या वो जरूरी है कि आपकी सरकार में हो? उस जमाने में एक मुस्लिम यानी आजम खान मिनिस्टर थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि वो घटना इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई थी और थोड़े लोग मरे थे। इस घटना की तो जो चश्मदीद गवाह हैं सर, जिन्होंने कल और आज में यूट्यूब पर आकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सब लाशों को कचरे से ढक दिया गया है। यानी धर्म का भी अपमान किया और धर्म की जो विधियां थी उसको भी इन्होंने तबाह किया। और इस बेशर्मी के साथ उनको ये कह दिया जा रहा है कि सब मोक्ष प्राप्त कर लिए। तो सारी वीआईपी जो गए थे इन्होंने मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त किया? मोदी जी, योगी जी जो जाने वाले हैं ये भी मोक्ष प्राप्त कर लें उसी दिन वहां, तो कम से कम इनका जीवन सफल हो जाए ना। क्योंकि हजारों लोगों का जीवन बर्बाद करने से बेहतर है कि वो खुद ही मोक्ष प्राप्त कर लें। ये तो धर्म का अनादर। और एक और बात भी कही जा रही है प्रदीप जी, ये सिर्फ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं वैसे भाई थे, और योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में ऐसी बात कहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि अंदर लोग गए, प्रदीप जी मॉर्चरी में गए लोग, मॉर्ग में जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था, और उन्होंने खुद ने स्टिंग ऑपरेशन किया है जहां पर एक लाश के ऊपर अंगूठे के ऊपर नंबर 58 लिखा हुआ है। तो मतलब एटलीस्ट 58 पीपल डाइड, 58 लोग तो मरे हैं इसका मतलब।
Otherwise, why would that be number 58? निजाम साहब, सर उससे ज्यादा मरे हैं। बात सब क्लियर सी है कि जो लोग जगह पर हैं वो क्यों झूठ बोलेंगे सर। और जो जिस तरह की चीजें हुई, आपने जो मेला व्यवस्था के लिए आपने केंद्र बनाए थे, उनको इतना भी सेंस नहीं है कि कहां से लोग आए हैं, क्या हो रहा है। दो दो घटनाएं होती हैं, एक इलाहाबाद झूसी की तरफ होती है, एक संगम पर होती है। उस घटना का मोदी ये योगी जी जिक्र नहीं करने देते। सबसे अफसोसनाक जो पहलू है सर, जो कभी जिंदगी में इनको माफ नहीं करना चाहिए, मीडिया के जो लोग इनके लिए काम कर रहे थे, ईश्वर उनको बर्बाद कर दे, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के साथ मजाक किया, खिलवाड़ किया कि इनके पापों को दबाकर अपनी रोटी खाएंगे। आप सोचो सर, उनका परिवार कैसे सुखी रह सकता है बजाज सर, क्योंकि ये धर्म का विषय था ना। अगर कोई घटना हो गई थी तो कोई घटना को तुम रोक नहीं सकते थे ना। जो घटना हो गई उसको सब ईश्वरी घटना मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उसको छिपाने की कोशिश हो रही है, और उसके छिपाने में जो पाप का सबसे बड़ा भागीदार बन रहा है वो गोदी मीडिया है। उन्होंने तो हिंदुत्व को भी बर्बाद कर दिया, और योगी को बचाने के चक्कर में उन्होंने क्या क्या कर दिया। लेकिन सारे धर्म गुरुओं ने एक स्वर में ये कह दिया कि ऐसे पापी को इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये कार्यक्रम कुंभ खत्म होने से पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये संतों की बात है। निजामुद्दीन जी, कुंभ खत्म होगा, मगर मोदी जी ने जिस प्रकार से टूरिज्म को खोल के रखा है, ना सिर्फ रामायण सर्क्यूट के लिए टूरिज्म खोला है। नहीं, 2 मिनट में जरा बता दूं आपको। रामायण सर्क्यूट, बुद्धा सर्क्यूट, करतारपुर सर्क्यूट, अब भारत रणभूमि दर्शन, जलियांवाला बाग, गलवान घाटी, यानी गलवान घाटी को भी टूरिज्म के लिए खोल के रखे, डोकलाम को खोल के रखे, बॉर्डर एरियाज को ओपन करके रखे हैं वीरों की शौर्य ये दिखाने के लिए। तो क्या इस चीज को मानते, टूरिज्म को किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं निजामुद्दीन जी? क्या इसको हम लोग सराहना नहीं चाहिए? इसको कितने पैसे इकट्ठा हो रहा है? होती है सराहना की बात तब होती है जब आदमी को कोई चीज फ्री मिल रही हो। सारे उद्योगपतियों के माध्यम से इसको बनाया जा रहा है, उसका सारा पैसा उद्योगपतियों को जाएगा। लाल किला आपने सुना होगा कि कांग्रेस के सरकार के पहले तक लाल किले में 2 रुपए 1.5 रुपए का टिकट लगता था, अभी 50 रुपया हो गया है, और वो भी ठेका जो है गुजरात के किसी आदमी को उन्होंने दिया है। ये सारे ठेके की पद्धति आ रही है। सारी चीजें बनाएंगे, लेकिन सारी चीजें किसी के अंडर में होंगी। आपका जेब से पैसा जाएगा तो आप कोई चीज देख सकेंगे। आपके लिए कुछ फ्री नहीं है, सिर्फ आपका वोट फ्री है कि आप अपना वोट फ्री दे। कहां फ्री है सर? अरे सर, आप भी पैसे दे रहे हैं वोट के। दिल्ली में 2,500 रुपए आपने भी प्रॉमिस किए हैं, बाकी सब लोग भी प्रॉमिस कर रहे हैं। आजकल तो वोट की कीमत बहुत बढ़ गई है सर, क्या बात कर रहे हैं? आप पैसे नहीं दे पाए महाराष्ट्र में, इसलिए हार गए जी। मैं सर इसको नहीं मानता कि पैसे दे के वोट हो जाए, लेकिन ठीक है, जिस तरह की भ्रष्टाचारी व्यवस्था करके मुझे ये कहना है कि समाज का जो मजबूत अंग है, जैसे जुडिशरी है सर, मीडिया है, दूसरी जो व्यवस्था सर, मीडिया को तो भूल जाइए ना। वो तो सरकारों के दबे में नहीं रहना चाहिए ना सर। मीडिया को तो भूल जाइए। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, ये आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद आप जो कहना चाहें जरूर कहिए। प्रदीप जी, आप भी जरा ध्यान दें। आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑल्सो ऑन दिस। प्रदीप जी, सर ऐसा है कि जहां पर भी कोई भी बड़ी चीज होती है ना, अरे भाई वो महाकुंभ की तरह फुटेज दिखा दें प्लीज। जहां पर मोदी जी को आप दिखा रहे हैं, मोदी जी को तो आप हमेशा ही दिखाते हैं, हम भी देखते हैं, मोदी जी के तो बहुत बड़े फैन हैं हम लोग। सर ऐसा है निजाम साहब, जहां पर भी कोई बड़ी बड़ी चीज होती है, तिरुपति हो गया, वैष्णो देवी हो गई, कोई भी हो गया, अपना यहां तक कि सिद्धि विनायक भी हो गया, और तो और छोड़िए लाल बाग का राजा भी हो गया, वहां पर एक वीआईपी दर्शन होता है। ठीक है सर, जो वीआईपी होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था होती है, लोग चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन में जाते हैं, प्लेन में जो रसूख वाले लोग होते हैं वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, बाकी हम जैसे लोग जो होते हैं वो इकोनॉमी में होते हैं, मतलब कैपिटल क्लास में, उसमें होते हैं पीछे। प्रदीप भाई तो वैसे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहली बार मैंने देखा है कि महाकुंभ में भी, मेरा ये आइडिया था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आप बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, मेरा ये आइडिया था कि वो जो 26 के करीब इन्होंने पुल बनाए हैं, उसमें से 4 पुल जो हैं ये लोग उनके लिए रख देंगे, वीवीआईपी के लिए, और बाकी जो है गरीब गुरबा जनता जो है पूरे गांव से जो आई है, मध्य प्रदेश से, बिहार से, अपना झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, सब लोग जो आए वहाँ। अब इन्होंने क्या किया, 16 के करीब पुल को बंद कर दिया। ये क्या है? मतलब मेरी पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि गरीबों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मतलब मेरी समझ के बाहर है जरा ये। सर वो भी छोड़ दीजिए, अगर ये घटना सर, सिर्फ ये घटना अगर प्रयागराज या संगम तक होती तो बात समझ में आती है जी।
70-80 किलोमीटर दूर इन्होंने बैरियर लगा दिया, आदमी कैसे जाएगा? जी आप दुरुस्त। बिहार से आए हैं और आपको जो है बॉर्डर पर ही आपको रोक दिया गया और कहा कि आप चल के जाइए, गाड़ी नहीं ले जा सकते हो, तो फिर आपकी व्यवस्था का क्या सेंस है सर? यानी जब आप 80-80 किलोमीटर किसी को छोड़ देंगे, उसके लिए रास्ते में खाना भी नहीं है। तो इस धर्म संसद का दूसरी चीज है कि सबसे बड़ा अपमान आप देखिए, ये धर्म कुंभ जो था, जहां होना था, ये किसी के निमंत्रण का मोहताज नहीं है सर। वो धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने अपने धर्म को मानने करने के लिए जा रहा है ना। तो आपने इतने हजार वीआईपी को सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करना कि मैंने आपको बुलाया है, आप आ जाओ, तो आप उनको एंजॉय करा रहे हैं और इनको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। तो ये तो धर्माचार्यों ने इनसे सवाल खुद पूछा है। ये तो देश के धर्माचार्यों को चाहिए कि इनका बाइकाट करें और इनको धर्म का कोई काम करने ना दें। निजामुद्दीन जी, धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। निजामुद्दीन जी, कल ही कांग्रेस ने डिमांड किया है कि आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को बैन करो, मगर बीजेपी का कहना है राष्ट्र हित में जो संगठन काम कर रहा है, राष्ट्र जो नौजवानों को दिशा दिखा रहा है, पूरे देश को दिशा दिखा रहा है और उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में आरएसएस का, मगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, शिक्षा बजट उन्होंने कम कर दिया, नारी वुमेन्स विरोधी है, नेशनल फ्लैग का सम्मान नहीं करता, माइनॉरिटीज के खिलाफ है और पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर किया है। तो क्या ये सही है? राष्ट्र हित में जो संगठन काम कर रहा है उन पे आप कह रहे हैं कि फिर बैन करो। आरएसएस संगठन क्या काम कर रहा है? एक काम बताइए ना सर। मुसलमान हिंदू दंगा करा रहा है, देश के संविधान को नहीं मानता, खुद जो है इनके जो है चीफ हैं आरएसएस के, वो खुद कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद ये देश आजाद हुआ। जो संविधान पे विश्वास ही नहीं करता, जिसके यहाँ 50 साल तक झंडा नहीं फहराया गया उनके यहाँ, वो उस तरह की बातें करेंगे कैसे? आप मेरे को बताइए, अंग्रेजों के इतिहास से लेकर आज तक इनका क्या रोल रहा है? देश के महापुरुषों के लिए उन्होंने क्या किया है? आज तक वो गांधी के बारे में अपनी राय नहीं रखते। आज भी जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू इस देश के ऐसे निर्माता रहे हैं कि सदियों सदियों क्या। अगर आपने कुछ किया है तो अपनी दिखाओ ना कि हमने ये बनाया, हम ये दे रहे हैं राष्ट्र। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं निजाम साहब, चलते चलते, कि कांग्रेस ये सब इश्यूज जो है ये लेके नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे महाकुंभ है। अरे सर पूरी बात तो सुन रहे हैं, बाकी मीडिया को आप छोड़िए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आजकल उनको वैसे कोई दिखता भी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है व्यूअरशिप पैटर्न्स की हिंदुस्तान में, वहां पर हम जैसे चैनल जो है, मतलब डिजिटल चैनल जो हैं, तकरीबन उनकी जो पहुंच है वो 62% हो गई है। 38% से सिर्फ देखते हैं उनको, 62% देखते हैं डिजिटल मीडिया को। और जी, और तो और छोड़िए, लोगों ने अब चैनल देखना भी बंद कर दिया है। उनको अलग जगह से खबर आती है, ट्विटर से, जैसे एक्स है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, बाकी हर जगह से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था है सर, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कैंपेन इफेक्टिव क्यों नहीं होती? जैसे बीजेपी की कैंपेन हमेशा इफेक्टिव होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अभी जिज्ञासु साहब ने पॉइंट आउट किया, आज सुबह से यही चल रहा है कि मिडिल क्लास को अब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने जैसे पॉइंट आउट किया, अरे मिडिल क्लास बची कहां है? सैलरीड एम्प्लॉय हैं कहां? जॉब्स कहां हैं? मिडिल सर, सैलरीड एम्प्लॉय तभी होंगे ना जब नौकरी होगी। अरे जब नौकरियां नहीं है तो ये 12 लाख किसके फायदे के लिए है? ये बताएं आप। तो आप लोग इसका प्रचार क्यों नहीं करते अच्छी तरीके से? निजाम साहब बताएं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में अभी कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में डिजिटल की जो उनका प्लेटफॉर्म था उसको उन्होंने बहुत अच्छा किया है और उन्होंने अपना सोशल मीडिया टीम, जो जनता की में रियल पहुंच वही है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो चैनल या यूट्यूबर्स को लोग देख रहे हैं, अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि मैंने देखा कि जिस तरह से डिजिटल चैनल और यूट्यूबर्स रियलिटी को सामने ला रहे हैं, वो तो गोदी मीडिया जिंदगी में नहीं दिखाएगा, चाहे जो भी डर हो। तो अभी कांग्रेस इसमें पहल कर रही है, मेरा ख्याल है और अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि देश को सच जानने की जरूरत है। अगर देश सच नहीं जानेगा तो वो कोई निर्णय नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव के माध्यम से एमएलए एमपी चुनने का जो मसला है, वो बेईमानी पर पूरा बना हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव के दौरान वोट बढ़ाए गए, किस तरह से महाराष्ट्र में इलेक्शन बढ़ाए गए, इलेक्शन में वोट बढ़ाए गए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को 3 दिन पहले यह कहना पड़ा कि महाराष्ट्र में जितने जगहों पर कंप्लेंट्स आई है उनके कोई भी वीडियो डिलीट ना किए जाएं। ये 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इससे यह साबित होता है
कि बेईमानी के माध्यम से वो सरकारों में आ गए हैं और उद्योगपतियों की मदद से पैसा लगाकर गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों को धोखा दे रहे हैं। यही काम वो कर रहे हैं। क्या बात है? महाराष्ट्र अर्थात थामणार नहीं। अभी महाराष्ट्र के बजट है निजामुद्दीन साहब, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लियर ऐलान किया है कि महाराष्ट्र अर्थात थामणार नहीं। अटल सेतु, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, पालघर एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन 14, पोर्ट होल फ्री। तो बोले कि एक डेवलपमेंट का एक लहर पूरे महाराष्ट्र में। तो क्या आप, हाउ डू यू फोरसी, आप कैसे देखते हो महाराष्ट्र को? ये सारा विदेशी कर्ज से बनाया जा रहा है जो कुछ भी बन रहा है, या जो उद्योगपति इनके दो मित्र हैं वही बना रहे हैं, और उस पे कोई गरीब आदमी चल के जा नहीं सकता। महाराष्ट्र में जो गरीब आदमी रहता है वो ग्रामीण भाग से, अगर उसको नांदेड़ से मुंबई आना तो उसके पास टिकट का पैसे नहीं है, लेकिन जो अमीर इनका दलीय वो है वो आ सकता है। तो जो आप रोड बना रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसमें गरीबों के लिए क्या छूट है? आपको 2000-3000 जेब में टिकट के अलावा रख के गाड़ी में जाना है, जो वहां टोल टैक्स पहले ही पे करना है, और आज के लिए नहीं करना है, ये सदियों के लिए गिरवी रख दिया है, 50-50 साल। यानी आज अगर आपने आज टोल टैक्स भरा तो आपका बेटा जब 50 साल का होगा तब तक उनका टोल टैक्स आपको भरना है। तो आप जनता के लिए फ्री करके क्या ला रहे हैं? जनता के हित का क्या ला रहे हैं? आप वो बताइए ना सर। कोस्टल रोड का आप सपना दिखा रहे थे कि हमने कोस्टल रोड बना दिया। 1 महीने तक कोस्टल रोड का वर्ली में उतर के जाने का पैसा नहीं था, अब बांद्रा जोड़ दिया। अब आपको वो पूरा पैसा जो सीलिंग ब्रिज का देना था, अब इसके साथ भर के ही आप जाएंगे। वेरी गुड, वंडरफुल। सर, आप चलिए खुद निजाम देखिए ना। साहब, मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं कि आपके इस वक्त 16 एमएलए आए, 16, और आज तक आप लोगों ने एक पोस्टमार्टम मीटिंग नहीं करी है कांग्रेस ने, ये जानने के लिए कि हुआ क्या। तो अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे मुझे मालूम नहीं है। नहीं, सर, चल जहां रहा तक है। के बीजेपी का सवाल है सर, पूरी बात सुन लीजिए, जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनको मालूम है कि बीएमसी के चुनाव एटलीस्ट 6 या 10 महीने के बाद होने वाले हैं, और उनकी प्लानिंग अभी से शुरू हो गई है। अब इसमें कांग्रेस की क्या प्लानिंग है मुझे मालूम नहीं है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। सर, कांग्रेस भी अपनी प्लानिंग पूरी तरह से कर रही है। अभी जिस तरह के चीजें हुई हैं उस पर भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे मंथन हो रहा है। अभी हम लोगों ने चुनाव को लेकर अपने वोटर्स के साथ पूरे प्रदेश में हर जगह आंदोलन किया है, हर जगह जो है लोगों तक जा रहे हैं, लोगों तक बता रहे हैं। लोगों को एक बात समझ में आ गई सर कि ये चुनाव पूरा बेईमानी पर था, और इस बात को जस्टिफाई कर देगा। अभी आप देखिएगा थोड़े दिन में कोर्ट भी, और सारे लोग पूछ रहे हैं सवाल आज इलेक्शन कमीशन से कि ये 46 लाख वोट कहां से आए भाई? यानी रात में आपके काउंटिंग में 30 लाख था और सीधा ही सर बढ़ जा रहा है। तो ये जो बेईमानी हो रही है, ये तो कांग्रेस के हाथ में नहीं था ना सर, चलिए सर, ये तो सत्ता में था ना। मगर आपको निजामुद्दीन साहब, आपके पार्टी को संभालना पड़ेगा। आप सुन रहे धनगेकर साहब भी आपके जो पुणे के हैं, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के भागने के चक्कर में हैं। तो पूरे ये स्वार्थी लोग हैं। राहुल गांधी अकेले रहेंगे तो भी हम उनके साथ खड़े हैं सर, क्या बात है? आप चिंता मत करिए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच निजाम साहब, सो नाइस ऑफ यू। और आखिर में मैं एक चीज कहूंगा, निजाम साहब इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। आप ये देख लीजिए, दोनों भाग गए सब लोग। पहले निजाम साहब से डर के विनायक अंबेडकर साहब भाग गए, और फिर चलिए जिज्ञासु साहब को तो किसी और चैनल में जाना था। विनायक अंबेडकर जी कभी भी निजामुद्दीन जी जो रफ्तार से बोलते हैं ना, वो मैनेज नहीं कर पाते। पहले वो भी डर जाते हैं बेचारे। तो आप जब फायरिंग चालू कर देते हैं तो खुद ही भाग जाते हैं वो। और फिर वो बोलते हैं कि इसको क्या पागल जैसा आदमी बिठा रखा है, ये बिठा रखा है, ये बिठा, ये अजीबोगरीब है। दिस इज नॉट द वे। मुझे नहीं याद, मैं आपको एक चीज बता दूं निजाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे बहुत करीब हैं। बीजेपी का कोई और शख्स कभी भी ऐसे बात नहीं करता, कोई नहीं करता। हर एक कोई बड़ा सभ्य है, ज्यादातर कर्टसी से बात करते हैं। हाँ, जब गर्मा गर्मी होती है, गर्मा गर्मी में कुछ भी चलता है। अंबेडकर साहब पहले हैं जो इस तरीके से बात करते हैं। क्यों ऐसे बात करते हैं मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कि पार्टी ने उनको वो सब ना दिया हो जो उनकी उम्मीद हो, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो बेचारे। अब मैं क्या करूं उसके बारे में। खैर जो भी है, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। निजाम साहब, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, जरा जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, और राहुल गांधी को और प्रियंका जी को और सोनिया जी को आप जैसे सुदृढ़ साहसी लोगों की बहुत जरूरत है। आप साथ रहिए, एंड वी आर वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी फ्रैंकली, विद द वे यू हैव बीन लॉयल टू द कांग्रेस। कांग्रेस के प्रति आपकी लॉयल्टी कभी भी हिली नहीं है, इसके लिए आपको साधुवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार।
Well, you know what? I don't think anybody's ever going to be satisfied with any budget. At least she's given a 12 lakh rebate. चलो ठीक है, कुछ तो दिया है यार. अब उसके लिए भी अगर आप खुश नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं आपके बारे में. दूसरी चीज, दूसरा सर असेसमेंट कहा कि 99 और 90% of the self assessment has to be considered. You know, that's a very valuable. जो भी अपना assessment है, it will be taken as right. but I tend to agree with Dr. Subramaniam Swamy that income tax should be abolished. There should be no personal income tax. At least up to a certain limit. 25 लाख या 30 लाख के लिमिट तक कोई इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए. हाँ, 30 या 50 लाख रुपए साल के अगर आप कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आप कमा रहे हैं, आप उस पर इनकम टैक्स डालिए. 50 लाख से कम जितने भी लोग हैं उनके लिए आप इनकम टैक्स मत दीजिए. क्योंकि प्रदीप जी आप देखिए ना, आप रोड टैक्स देते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स देते हैं, आप क्या है वो जीएसटी देते हैं, पता नहीं, मतलब गिनना शुरू कीजिए कितने टैक्सेस आप देते हैं. आपकी जो सैलरी है या मेरी जो सैलरी है उसकी 55 to 60% तो इन्हीं टैक्सेस में चली जाती है, और उसके ऊपर इनकम टैक्स. दिस इज नॉट डन. आई मीन एब्सोल्युटली नॉट डन. I tend to agree with it. And by the way, President Donald Trump of the United States has also come out with the same proposal. Income tax should be abolished. So which means most of the IRS is going to be out of work in the US. But it's a great thing. I mean, if you see Prime Minister Modi is slowly moving towards that. Once he saw the collections of GST and all increased, he is slowly giving more relief where income tax is concerned. In fact, income tax, there should be zero income tax below a certain limit. आप जो भी लिमिट रख दीजिए, उसकी 50 लाख रख दीजिए, 40 लाख रख दीजिए, 25 लाख, जो भी करिए, लेकिन उसके नीचे कोई इनकम टैक्स नहीं होगा. और आपको टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं करने. सीधी सादी बात है. बस आपको ये फाइल करना है कि भैया मेरी इनकम इतनी है, बस दैट्स इट. क्योंकि क्या है कि जब तक के लोगों के जिम में पैसा नहीं होगा ना प्रदीप जी, वी विल नेवर बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. नहीं बन सकते आप तभी बन सकते हैं जैसा. इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, बेबी स्टेप. 12 लाख रुपए की आपने रिबेट दी है. इट्स अ बेबी स्टेप, बट इट्स अ ग्रेट स्टेप. You're putting money back into the pockets of the middle class, because the middle class is going to spend. What else will they do? या तो स्पेंड करेंगे, या बैंक में डालेंगे, या म्यूचुअल फंड में डालेंगे, या मार्केट में जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना. बट दैट मनी विल फाइंड इट्स वे बैक इनटू द मार्केट. बिल्कुल सीधी सादी बात है. सो दैट्स हाउ all economies in the world grow. India in fact has among the highest tax rates in the world. Let's be very clear. And what do we get in return, Pradeep ji? This is a subject that we must talk about at some point of time. You step out of your house and you are on the same dirty, filthy road, you are on the same whatever. But if you look at the other way, at least the first time India is seeing a mass development all over the country. You know, at least in terms of balanced development, Pradeep all ji, roads are connected. At least in terms of roads, border areas, at least in terms of expressways, waterways, railway lines. I mean, whatever you call लेकिन it. जो अभी निजाम साहब ने बात कही कि 7,000 रुपए की अगर टिकट है इलाहाबाद जाने की, तो सर ये तो But you know, you got Garib Rath also. I mean, ऐसा नहीं है कि it's also fully AC और अलग-अलग. It is there for everybody. जैसे कुंभ में हमने देखा कि even Mrs. Gates has a place where she can have the best of luxuries. Even the poor man can live in a small tent and cook his own food. So all arrangements were there. I mean, that's the way India developed. Every segment has a place for itself. Sir, that is the way of the world. Yes. That's how the world does it. I mean, so every segment can come in every place that they want to and live the way they want. I mean, if we are moving towards it, and which we can see, we can visualize it. At last, we are moving in a direction in a time-bound manner. And if he says 2047 Viksit Bharat ki sapne leke मैं चल रहा हूँ, he's got everything in time. At least we have got some prime minister who has time-bound goals. So, in your opinion, I'd like to pick your brains on this. Up till now, Arvind Kejriwal had been campaigning and he had come out with this great budget for the middle class. Do you think the Prime Minister and Nirmala Sitharaman could have preempted that now and they've upped it Of now? course. But even in where Delhi is concerned, the BJP has increased Ayushman from 5 lakh to 10 lakh. They're giving monthly pension, pregnant women को पैसे, various other things which the Aam Aadmi Party is doing. साथ में they're already matching it point to point. सर एक और चीज भी तो बता दें. आज की तारीख में हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है. जितने भी हरियाणा के हॉस्पिटल्स हैं, they have stopped accepting आयुष्मान भारत cards. That is what they have to work on. The Prime Minister's pet project है Ayushman और It was Ayushman a great project. Ayushman Mandir. Sir, it was a great project. 70 years के ऊपर लोगों को free कोई भी हो. Sir, it was a great project. Yes, That's all yes. I'm saying. But
Hospitals are refusing to accept the Ayushman Bharat card. Even almost 50% of the hospitals in Mumbai and in Maharashtra. Even here, people are facing the same problems. Hospitals are saying भाई पैसे रख के जाओ, ये आयुष्मान भारत कार्ड हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है, हेल्थ कार्ड लेकर के आइए, we'll work on that. The government has to come out with entire standard operating procedures for this, and this has to be enforced in every hospital. जो उनके अगर आयुष्मान मंदिर हो, जो भी हो. Now they claim that Ayushman, the smallest place, is connected to the biggest hospitals. Now, if that is the truth, then why are cards not being accepted? So the government has to work on it. आपने policy बनाया, अगर implement नहीं हो रहा है, number two, implement नहीं हो रहा तो it's your fundamental duty to inform right from the lowest level to the top that you have to follow these procedures. और अगर मान लीजिए हॉस्पिटल्स उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्पेशली, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो पैसे जमा कीजिए, सीधी बात है. लेट द पेमेंट बी मेड वेरी वेरी सिंपल फॉर ऑल हॉस्पिटल्स, सीधी बात है. नंबर एक. नंबर दो, सर यहाँ पर एक दूसरी चीज आती है. जैसे कोस्टल रोड है. कोस्टल रोड हैज बीन द पेट प्रोजेक्ट ऑफ आवर फ्रेंड नितिन गडकरी साहब, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, देवेंद्र फडणवीस साहब, एंड दिस इज वन प्रोजेक्ट ऑन विच मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, शरद पवार, अशोक चौहान एंड उद्धव ठाकरे एग्री. ऑल ऑफ देम एग्री ऑन दिस प्रोजेक्ट के कोस्टल रोड होना चाहिए सब, ठीक है. और वो तकरीबन बन भी गई है. पार्ट ऑफ इट हैज बीन ओपन. बट व्हाट इज द ट्रैफिक दैट इट इज सीइंग राइट नाउ? पूरे मुंबई के ट्रैफिक के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ा है? आखिर में कोस्टल रोड के ऊपर जो गाड़ियां जा रही हैं, जिस तरीके से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उसकी क्या है पूरे शहर को लेकर के. दैट हैज टू बी कंसिडर्ड सर. It has to be considered, but the most important thing is you got an infrastructure out there. आज नहीं तो कल लोग इस्तेमाल करने ही वाले हैं. सब करेंगे. You got ways, the entire clog, the arteries which was totally over congested. You got an alternative way for that now. आप जल्दी से पहुंच सकते हैं. I don't see anything at all for the local train network, suburban network, local suburban train network के लिए मुझे फिलहाल कुछ नहीं दिखा है इस बजट में. I may be wrong. I'll read it again. 14 metro lines and the Sir, metro lines. Let's talk about the local train network. What I'm trying to say is there is the people believe that half the crowd will go there because it is much more networked rather than straight one eastern and one central western line. Now you got across length and breadth of the Mumbai, and the same thing is there in Thane, Navi Mumbai. Everybody is following the same kind of things. But as you said, it has to be more economical. The Indian Railways should work something out. The Indian Railways have to work very, very hard to get the finance minister's ear and say, hey, you remember we used to have a separate budget. You came along and decided to monopolize the entire budget. Now give us what we need. That's it. और यहाँ पर प्रदीप जी एक और बहुत बड़ी समस्या है जो रेलवेज के साथ है, जिसके ऊपर इस बजट में मैंने फिलहाल देखा नहीं है. The laying of new railway lines, railway tracks that is. प्रॉब्लम क्या हो रही है, समस्या क्या हो रही है कि आपने वंदे भारत चला करके ट्रेन की स्पीड आपने इंक्रीज कर दी, आपने रफ्तार इंक्रीज कर दी, बट द ट्रैक्स आर ओल्ड, दे आर नॉट capable of taking those speeds, as a result of which you are seeing accidents happen all over the place. Of course, there are some accidents which happen due to human error and due to panic, but the main reason why accidents are happening is because the rail, that is the rail जो होते हैं ट्रैक नेटवर्क, that is old, पुराना हो गया है, and it is unable to keep pace with the Prime Minister very Modi speedy has trains. just few days back announced that during his term of this 10 years or 11 years, 30,000 kilometers of new railway tracks have been laid. Yes. Now that's what he claims, but then No, but it is require true. much more than that. It is absolutely true. That 30,000 kilometers is less than 5% of the total Exactly. railway network which needs to be refurbished. The problem that is occurring is the laying of the tracks is unable to keep pace with the new trains which are coming. Now, they'll have to find a way out over there because there is no magic trick here there's no magic wand with which you can just do it. But it's an attempt. और MSMEs को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है, स्टार्टअप्स को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है, इंडस्ट्री के लिए जो कुछ कहा गया है, और यूथ के लिए, युवाओं के लिए
जो ये यूथ सेंट्रिक बजट है ना प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका फायदा लोग असल में लें और सरकार इसको एनकरेज करे, it will be great for the country. Fantastic. This budget will really be remembered as the one which laid the proper platform for a huge economic quantum jump for India. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में इस बजट का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, बशर्ते कि जो चीज़ें आपने प्रॉमिस करी हैं, जो चीज़ें आपने लिखी हैं बजट में, उसको आप अच्छी तरह इंप्लीमेंट करें। जैसे अभी आयुष्मान भारत कार्ड की बात हुई थी, महाराष्ट्र के ज़्यादा बहुत हॉस्पिटल्स हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हरियाणा में मना कर दिया है, दिल्ली में तो है ही नहीं। अब मेरा ये कहना है सरकार को ये देखना पड़ेगा ना सर कि आयुष्मान भारत कार्ड प्रधानमंत्री की पेट योजना, उनकी सबसे दिल से करीब योजना, उसको लोग, उसका कार्ड जो है लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक that shows that the bureaucrats are a law unto themselves. That's it. That's what it means. That somebody somewhere is not taking you seriously. And not only that, the Prime Minister himself is not getting the feedback from the crowd. No, he is not. Because Haryana is the BJP government. हरियाणा बीजेपी की सरकार है सर, साथ में। And if this news has not reached the Prime Minister, Of course it has reached the Prime that Minister. project, 100% must have reached probably the he's Prime Minister. letting a blind ear to that particular. But I am very happy about the defense Definitely. budget. The defense allocation has really gone up. The largest allocation, in fact, in the entire budget has gone to defense. So, which is fantastic. But we'll have to look at the fine print as to how much is for salaries, how much is for pension, how much is for new equipment, and so on and so forth. So, we'll have to take a look at that. But in all fairness, I would say a very good budget indeed. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. Please do subscribe to the channel. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो घंटी भी बज रही है। आप अगर इफ़ यू वांट टू गेट अपडेट्स फ्रॉम द चैनल, प्लीज डू क्लिक ऑन द बेल आइकन। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, कमेंट जरूर भेजें अपने, प्लीज डू सेंड मी योर कमेंट्स। दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.